Hello everyone, this is day number 27 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are about to do combinations. In day number 26 we did permutation. These two should be done together. And I hope अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, you are already thorough with the concepts of permutation, which is basically arrangements. If not, we'll discuss in today's lecture. These two, as I have previously also discussed, कि इससे पिछले 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर है. अगर पूछा जाए तो लॉजिकल एंड पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं और वो इस पे पूछे जा सकते हैं, तो इसको कवर कर लेना. चलो, दिस इज वेयर वी आर एट डे नंबर 27. 3 more lectures to go to complete our 30 days सीरीज. और आप मुझे इस वीडियो के एंड में बताना कि आपको अभी तक कुछ बेनिफिट हुआ है, नहीं हुआ है. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस फॉर दीज 30 days? ऑल्सो दीज आर समथिंग दैट PYQ इफ यू विश टू कवर, आपको यहाँ से कवर कर ही लेना चाहिए. PYQs आर नॉन नेगोशिएबल. प्लीज डोंट कंसिडर इट कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम उसके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप टारगेट करते हो, यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. इस प्लेलिस्ट पे ये सारे कवर्ड हैं बैक फ्रॉम 2025 गोइंग अप टू 2011. तो आप यहाँ से एक एक वीडियो करके कवर कर सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन क्या है? इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट्स. जैसे फॉर 3 elements A, B, C, in how many different ways can you arrange 3 persons in a line? तो आप बोलते हो nothing but 3 factorial or 6 ways. Now what are these 6 ways? Alphabetically सोचना ज़रा. If you place A at the first spot, B and C can be placed at BC. This is first arrangement. Then you can also do A and CB, or you can do B and then AC, or maybe B then CA, or CAB and then CBA. These are the 6 arrangements. Now why am I calling it to be 6 different arrangements? यहाँ पे elements तो सारे cases पे same है. ABC, ABC, ABC. In any of these arrangements, I'm calling it to be 6 different, but इन सब में BAC है. वही 3 elements हैं. इनका order change हो रहा है. The position in which they occupy the places actually changes. और अगर ऐसा होता है, then it gives rise to a new arrangement altogether, and that is the concept of permutation. So number of arrangement in which the order matters is basically arrangement. For 3 elements occupying 3 different chairs, we have 6 ways. But if I ask you what is combination, in how many different ways can you select a team of 3 members out of 3 members? तो आपको बस ये 3 स्पॉट्स को फिल कर लेना है, नो मैटर हाउ यू फिल देम. आप यहाँ पे ये रखो, यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे सी रखो, और यू राइट बी हियर, ए हियर एंड सी हियर. दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेम एंड नॉट डिफरेंट. ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज सेलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या क्या सेलेक्ट हो रहे हैं? ए बी सी, ए बी सी, वो 3 एलिमेंट्स ही हैं. नाउ व्हाट इज डिफरेंट? सपोज I select 2 members out of 3 members ABC. I select AB. Now this is same as BA. ये दोनों सेम है. But if I say AB and I select AC, these two are different. You know why? Because elements change. यहाँ पे B है, यहाँ पे C आ गया. Elements change हो रहे हैं. So this is about combination, and in this the order does not matter. The position in which we place does not matter. The elements matter. तो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे जाओ, अगर उसका कॉम्बिनेशन, उसके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, इट गिव्स राइज टू अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑल टुगेदर. ओके, नाउ दीज आर फॉर्मूलाज टू डू परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. व्हाट इज दिस? You know this is n factorial upon n minus r factorial, where you know that if we have 0 factorial, the value for this is 1. So if n becomes equal to, or r becomes equal to n, so npn becomes npr becomes npn, and this will be written as n factorial upon n minus n whole factorial, or the denominator part is 0 factorial, ऊपर पे क्या है? n factorial. तो ये अल्टीमेटली n factorial बन जाता है. जैसे I want to arrange 4 elements in 1 2 3 4 chairs. So these 4 elements could be A, B, C, D. 4 elements, 4 chair,
n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 4, this actually becomes n factorial which is 24. 4 factorial is 24. और इसको आपको आता भी है चेयर कॉन्सेप्ट अगर करने तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट. मेरे पास ए बी सी डी है. एनी ऑफ द फर्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 4 ways, then 3 ways, then 2 ways, and then 1 way. And ultimately it is 4 into 3 into 2 into 1, which is 24. That's the common idea. Okay. कॉम्बिनेशन क्या है? आप अगर इस पार्ट को कंसिडर करो तो दिस इज नथिंग बट परमुटेशन. n factorial by n minus r factorial upon r factorial. This part is extra here. So इस पार्ट के लिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ncr is nothing but npr upon r factorial. That's the general idea for combination. Okay. अब आपको सॉल्व करना आता है. ऑल्सो यू शुड नो दैट NC0 नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट सेलेक्टिंग समवन इज ऑल्सो 1 way. This is 0 ways. 0 factorial is 1 because number of ways of not doing a particular task is also 1. Now, there are certain shortcuts regarding permutations and combination and we should definitely cover it. How do we go about with this? जैसे मान लो we write 4p2 तो आप क्या बोलते हो? दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus 2 होल फैक्टोरियल और दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज 24 by 2 विच इज 12. ये एक तरीका एंड आई गेस दैट यू नो दिस पार्ट. इस पर कोई डिफिकल्टी नहीं है. बट शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड ये कहता है कि इफ इट इज 4p2 you have to go 2 places back from 4. So it is 4 into 3, 2 places, which is 12. Direct answer. ये मज़ेदार चीज़ है. इसको सीखने पे काम करेंगे. जैसे if I ask you what is 4p3 तो आप बोलोगे you need to go 3 places back. 4 into 3 into 2 which is 24. Now if I ask you what is 5p2 तो आप बोलोगे 5 into 4. What is 5p1? So you would say 5. एक place वापस से. That is how things are. Now for combination, you know combination is nothing but permutation by r factorial. So for maybe 4c2 आप इसे 4 into 3 तो लिखोगे permutation. 4 into 3 is permutation upon 2 factorial. What is 4c3? 4 into 3 into 2 upon 3 factorial, r factorial. This is r. जैसे 5c2 is 5 into 4 upon 2 factorial. This is basically a shortcut method. ये जो method आप कर रहे हो अभी, these are known as the shortcut method to look at problems. ये शॉर्टकट मेथड्स क्यों यूजफुल है? बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू लुक एट क्वेश्चन तो ये बड़े आसान हो जाते हैं छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स में. चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 persons बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 persons? तो टोटल आपके पास कितने हैं? 5 लोग हैं और आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? 3 करने हैं. तो n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3. ऑलवेज द लार्जर वन हैज टू बी द वैल्यू ऑफ n, द स्मॉलर वन हैज टू बी द वैल्यू ऑफ r. इन हाउ मेनी वेज कैन 3 persons बी सेलेक्टेड? तो कॉम्बिनेशन लगाओ. कैसे लगाओगे? NCR और 5C3 which is 5 into 4 into 3 upon 3 factorial. So this is 5 into 4 into 3 upon 3 into 2 into 1. ये 3 cancel out हो गया and then you are left with 10. That's the correct answer. In 10 ways this can be done. ठीक है, simple है. Now question number 2. In how many ways can 5 persons be selected out of 5 person? तो अगर आपके पास 5 लोग हैं A B C D E और मैं बोल रहा हूँ एक टीम बनाओ जिसमें इन सबको इंक्लूड कर दो नो मैटर हाउ. तो चाहे आप पहले A रखो, फिर B रखो, फिर C रखो, फिर D आओ, फिर या फिर E आए, अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट है वो एक ही होगा ना. और 5C5 is basically 5 into 4 into 3 into 2 into 1 going 5 places back upon 5 factorial.
क्या ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम नहीं है? एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो. दिस कैन बी डन इन वन वे. बट कॉन्सेप्चुअली आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि 5% बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 5%. इन सबको अगर इंक्लूड करना ही है तो ओनली वन कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड एंड दिस कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज मेंबर्स. So just one combination all in all, that is NCN is always 1 and NPN is n factorial. Okay, अब जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दे. आप इसे एक बार ही ट्राई करो. A team of 3 persons has to be formed having at least one man. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्वेश्चन का, और कंडीशन अगर होता है तो इस पे फोकस करना पड़ेगा. एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? द मिनिमम इज वन, द मैक्सिमम अप टू वॉट इज अलाउड. सो वी हैव टू कीप वन मैन एटलीस्ट. इफ देर आर अ टोटल ऑफ 4 men and 3 women, in how many different ways can the team be formed? Okay, so we have to keep at least one man. So I can choose to keep one man and then 2 women, or another team could be wherein I can choose to keep 2 men and 1 woman, or another team can be formed of 3 members wherein first, second and third all are men. तो ये 3 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं. ऑल राइट, अब इनको कैसे देखना है, सिंपली ज़रा ध्यान देना. यू हैव टू सेलेक्ट 1 मैन आउट ऑफ 4 men. तो 4 टोटल है, एक सेलेक्ट करना 4C1, and 2 women out of 3 women. So into, why this is into, कि देखो 4C1 करने पे सिर्फ एक स्पॉट फिल होगा, आपको भी और 2 स्पॉट्स को फिल करना है, एंड दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन, इसे एंड बोला जाता है. तो इसको फिल करो. एंड दिस, लेट्स से दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3, एंड ऑल ऑफ दीज केसेस आर फाइनली एडेड अप. आपका फाइनल आंसर इज ऑलवेज केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3. If other cases are there, all cases are obviously added up. Now 3C2, ये क्या बनेगा 4C2 into 3C1. ये क्या बनेगा 4C3 into 3C0. चलो ज़रा सॉल्व करो. This becomes nothing but 4. 3C2 is 3 into 2 upon 2 factorial. So 4 3s are 12. Next 4 into 3 by 2 factorial. ये कैसे कटेगा, ये बेसिकली, एंड दिस इज 3C1, दिस इज 18. नेक्स्ट 4 into 3 into 2 upon 3 factorial, and this is 3C0 which is 1. ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ 4. व्हाट इज द करेक्ट फिट? 34 ways this can be done. ऑल राइट, जहाँ तक चीज़ें आई गेस क्लियर है. अब क्या ऐसे क्वेश्चन को देखने का कोई शॉर्टकट है? क्या हो सकता है? ये तो आपको आइडिया आ गया कि कैसे आपको कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. यू हैव टू बिल्ड केसेस एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर. बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द डेटा दैट वी हैव, वी ऑल्सो हैव अ शॉर्टकट. और वो शॉर्टकट क्या है? देखो, यू आर सपोज टू फॉर्म अ टीम विच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 मैन. ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब एक मैन तो रखना ही रखना है. ओके, अगर मैं एक बार के लिए कंडीशन हटा दूं कि कोई कंडीशन नहीं है, आप बताओ इन हाउ मेनी वेज, इफ यू हैव 4 men एंड 3 women एंड यू डोंट हैव अ कंडीशन एज सच, और आपको बस ये टीम बनानी है, तो आप बोलोगे यार अगर कोई कंडीशन नहीं है देन आई हैव 7 members टू लुक एट, और मुझे जो स्पॉट फिल करना है वो 1, 2 और 3. So I can say n value is 7, r value is 3. So this can be actually done in 7C3, which is 7 into 6 into 5 upon 3 factorial. So this can be done in 35 ways. तो 35 ways यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस एक्चुअली इंडिकेट्स कि अगर मैं टीम बनाना स्टार्ट करूँ विदाउट एनी कंडीशन, तो आई कैन मेक 35 टीम्स, 35 डिफरेंट टीम्स. और ये सारे जो केसेस मैं बना रहा हूँ, जो 12 वेज हैं, 18 वेज हैं, 4 वेज हैं, ये सब इसी का पार्ट है. सो वी हैव सॉल्व्ड एंड वी गॉट 34, बट हियर वी हैव 35. व्हाई वी हैव 1 लेस हियर? बिकॉज एक ऐसा भी केस बनेगा फॉर टीम वेयर
ऑल ऑफ देम वुड बी विमेन। आपके क्वेश्चन पे क्या है दैट, और ये कितनी बार बनेगा, इफ यू हैव 3 women 3C3 विच इज जस्ट वन वे। और ये एक ऐसा कंडीशन है जो नहीं हो सकता क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप टोटल में से इसको माइनस कर दो। जैसे you are supposed to form a team which consists of at least one man, so from the total combinations minus the exact opposite of this at least one man का मतलब क्या है, no man। one man means at least one man should be there, no man means nobody should be there। no man का मतलब क्या है, अगर टीम बनाओगे और कोई एक मेल जेंडर नहीं है, then you have to fill it with the other gender, the other gender is women, so no man is another way of saying all women। क्लियर है क्या? टोटल क्या है, टोटल इज नथिंग बट 7C3। ऑल वुमेन का मतलब क्या है, आउट ऑफ 3 women all 3 आर सेलेक्टेड, सो 3C3। अब आइडियली आपको पता है कि दिस इज 35 माइनस 1 विच इज 34 वेज। तो कभी भी एटलीस्ट ये वाले केसेस आए तो आपको ये समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, और टोटल में से इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। I guess this question is clear. Moving on to a question like this. This is a previous year question from the year 2020 और इसके ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर एंड पे रिपीट हुए। आप एक बार इसे ट्राई करो। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन। सम्स का मतलब ये है कि बेसिकली व्हेन वी रेफर टू अमाउंट और रुपीज, ठीक है, पैसे की बात कर रहे हैं अगर अपने लोग, तो उसको सम भी बोला जाता है, सम ऑफ मनी। तो दिस एक्चुअली रेफर्स टू बेसिकली अमाउंट। क्लियर है? जैसे 50 रुपीज इज वन सम, अगर मैं एक 50 रुपये के नोट पे एक और 100 रुपये का नोट है मेरे पास, द टोटल सम ऑफ मनी दैट आई हैव इज बेसिकली 150। अगर सिर्फ मेरे पास एक 50 रुपये का नोट है, व्हाट इज द सम दैट आई हैव, द सम हियर इंडिकेट्स द सम ऑफ मनी, आई हैव 50 रुपीज। ये बात समझ में आ रही? इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको ऐड करना ही है, सिंगल हैंडेडली भी दीज आर, अगर आपके पास एक 500 का नोट है तो यू हैव दैट मच ऑफ सम। ठीक है, क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, सोचो ये क्या कह रहा है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? गिव इट अ ट्राई एंड कमेंट करो उसका आंसर क्विकली। नाउ हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन डिफरेंट सम्स बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशन 50, 100, 200, 500, 2000, taking at least 3 denominations at a time। taking at least 3 denominations at a time का क्या मतलब है कि you have to take a minimum of 3 denominations। all right, so out of 1 2 3 4 5 मैं क्या कर सकता हूँ, I have to select 3, तो out of 5 I have to select 3, 5C3। और जब मैं 5C3 लिख रहा हूँ तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, दिस कैन इंडिकेट 50, 100 एंड 200, और दिस कैन इंक्लूड 50, 100 एंड 500 एज वेल, और दिस कैन इंक्लूड 50, 100 एंड 2000 एज वेल। इस तरीके से और भी कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे। दीज आर 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। 5C3 का मतलब है 5 into 4 into 3 upon 3 factorial, so this is ideally 3 and 3 cancel out, we have a 2 here, so 2 into this is 10 ways। so इस तरीके से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो यहाँ पे 10 केसेस बनेंगे, 10 एक्चुअली में इसके कॉम्बिनेशंस होंगे। ऑल राइट, एटलीस्ट 3 का मतलब है मिनिमम इज 3, बट आई कैन ऑल्सो टेक 4 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम, सो दिस इज केस नंबर 2, तो इसे ऐड करना होगा 5C4 और आई कैन डू 5C5। क्या आप ये फॉलो कर पा रहे? ओके, चलो ज़रा इसे सॉल्व करो। 5 into 4 into 3 into 2 upon 4 factorial, so this is exactly equal to it, so plus of 5। next 5C5, 5C5 is 1, so plus of 1, ultimately the answer for this is 16। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट फिट। अब आप लोग मुझे ज़रा बताओ क्विकली, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बिकॉज अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2010। क्या है,
A person X has 4 notes of rupees 1, 2, 5 and 10 denominations. The number of different sums of money she can form from them is how many? अब अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ आई हैव 1 रुपी नोट उसकी भी वैल्यू है, अगर सिर्फ एक 2 रुपए का नोट है उसकी भी एक डिफरेंट वैल्यू है. 1 रुपी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम अ 2 रुपी नोट, इज डिफरेंट फ्रॉम अ 5 रुपी नोट, इज डिफरेंट फ्रॉम अ 10 रुपी नोट. सो आई कैन दिस पर्सन out of 4 denominations can choose any one. 4C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और 4C2 और 4C3 और 4C4. तो 4 फिर 4C2 क्या होगा 4 into 3 upon 2 factorial. So this is ideally 6 plus 4C3 4 into 3 into 2 upon 3 factorial. So this is 4. Then 4C4 is 1. 4 कितने हो गए टोटल 15 ways this can be done. अच्छा, जब मैं 4C1 लिख रहा हूँ तो ये क्या क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि आई हैव अ ₹1 नोट और ₹2 नोट और ₹5 नोट और ₹10 नोट. तो ये 10 कॉम्बिनेशंस हो गए. इनको सेपरेटली ऐसे देखना है आपको कि 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट. सेलेक्टिंग 1 out of 4. These are the 4 cases. ये रहे वो. यहाँ पे 6 आ रहे हैं. Selecting any 2. So it could be 1 and 2 rupee note, or 1 and 5 rupee note, or 1 and 10 rupee note, or 2 and 5 rupee note, or 2 and 10 rupee note, or 5 and 10 rupee note. Total कितने हो गए? Total 6 हो गए. Any 3 at a time. So 1, 2 and 5, or 1, 2 and 10, or 2, 5 and 10, or 1, 5 and 10. These are the 4. इसके अलावा और भी कुछ नहीं है. Taking 4 at a time. 1, 2, 5, 10. सिर्फ एक केस बनेगा. क्लियर है क्या? Add this up. This will be equal to 15. अब अगर ये 2 क्वेश्चन आपसे बन गए हैं तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2009. आप कमेंट करके बताओ. अ पर्सन हैज 4 coins each of a different denomination. So I can call this coin number A, coin number B, coin number C, coin number D of 4 different denominations. What is the number of different sums of money this person can form using one or more coins at a time? Using one or more coins at a time का क्या मतलब है कि 4C1, 4C2, 4C3 and 4C4. क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करो, आंसर बोलो क्या आ रहा है, कमेंट करो विद द क्वेश्चन नंबर और मुझे बताओ क्या आ रहा है. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2009. सो दीज क्वेश्चंस ऑन हैंडशेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसको कैसे देखना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मे बी फॉर, और लेट्स कीप इट टू, देयर आर 3 persons A, B and C. Every person shake hands with one another one time exactly. कितने हैंडशेक होंगे सोच के बताओ जरा. देखो, A B के साथ एक हैंडशेक करेगा, A C के साथ एक हैंडशेक करेगा, टोटल 2 हैंडशेक हो गए. B वापस से A के साथ हैंडशेक करेगा क्या? If 2 persons shake hands, that will be counted as one handshake only. अब B वापस से A के साथ हैंडशेक नहीं करेगा. A shaking hands with B is same as B shaking hands with A. तो अब B सिर्फ C के साथ हैंडशेक करेगा and that is one handshake. C पे आ जाओ. C has already shaken hands with B as well as A. तो यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा. Only total 3 handshakes were there. अब इसको अगर देखना है तो we can look at this problem with the help of a formula, that is there are 3 elements. So n की वैल्यू आ गई 3. एक हैंडशेक करने में कितने एलिमेंट लगते हैं? 2. सो R की वैल्यू 2. सो इट इज NCR, where it is NC2 always. Now this is 3C2. 3C2 का मतलब होगा 3 into 2 upon 2 factorial, ultimately 3, and that is what we have here. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, कॉम्बिनेशन कब यूज करना है, परमुटेशन कब यूज करना है, उस पर भी बात कर लेते हैं. जैसे देखो, अगर A to B is considered as B to A to B is same as B to A
For example, questions of handshake. Person shaking hands with the other person is taken as the same scenario. या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ टीम ए प्लेज अगेंस्ट टीम बी, सो चेन्नई प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई, there is just one match being played. India playing against Australia is just one match. So matches being played. Third, comparing two or more persons. Comparisons. आपने जैसे ही दो लोगों को कंपेयर कर लिया, एक ही कंपैरिजन में उन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा. बट सो हियर वी यूज द फॉर्मूला NC2 कॉम्बिनेशन. परमुटेशन वी यूज द फॉर्मूला NP2. और केसेस क्या क्या हो सकते हैं? द केसेस कुड बी व्हेन A gives a chocolate to B, but this is not same as B giving a chocolate to A. So A to B is not same as B to A. So we can say articles being exchanged. In a class of 5 students, every student gave a chocolate to every other student. How many chocolates were exchanged in total? तो 5P2 permutation लगेगा उस जगह पे. You know, the questions of person giving a slap to the other person. This is also a possible question. Person giving hugs to another person. This is a question of combination. ये पूछा भी गया. This question is actually part of your PYQ. Okay. Now come back to the previous question. और इसका आंसर करो. There are 10 persons shaking hands with one another. In how many ways it is possible? तो आपको पता है nothing but 10C2, which is 10 into 9 by 2 factorial. So this is 45. Option D is our correct fit. अब आप मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चंस डुएबल नहीं है? क्या ये इजियर एंड पे नहीं है? बिल्कुल ही इजी एंड पे है. आपको क्या ध्यान में रखना है आपको पता है, उसको ध्यान में रखो, काम करना स्टार्ट करो. ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. Now, in a class of 11 students, every student shook hands with every other student. Find the total number of handshakes that took place if it is compulsory to shake hand once in the morning and secondly in the afternoon. तो मॉर्निंग पे और आफ्टरनून पे दोनों केसेस को ऐड कर देना. क्या होगा? 11C2 प्लस 11C2. तो 11C2 into 2. So 11 into 10 by 2 factorial plus 11 into 10 by 2 factorial. 55 plus 55 which is 110. So that's your correct answer. आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो. अब इसमें करना क्या था, आपको ऐसे देखना था, एक बारी अगर वो हैंड चेक करेंगे जस्ट वंस, द आंसर वुड हैव बीन 11 स्टूडेंट्स C2. But since they are shaking hands 2 times, once in the morning and secondly in the afternoon, तो ये प्रोसेस 2 बार रिपीट हो रहा है into 2. So this is 11 into 10 by 2 factorial into 2. So this is 110 directly instead of making cases. Whichever way it's convenient for you, आप वहाँ से proceed कर जाओ. जैसे अगर आपको इन चीज़ों पे क्लैरिटी आ गई, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? ईच पर्सन परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद एवरी अदर पर्सन इज टू बी डन टू रैंक देम सब्जेक्टिवली. अब आपके पास कुछ लोग हैं, देयर आर 9 पर्सन्स, आप उनको आपस में कंपेयर करवा रहे हो और बेसिकली जब एक बारी कंपैरिजन हो जाए कौन सबसे बेटर है और कौन सबसे वर्स्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें रैंक करना स्टार्ट करते हो. ठीक है? तो हाउ मेनी कंपैरिजन्स डू यू नीड टू डू? एंड एट अ टाइम यू कैन कंपेयर 2 पर्सन्स. तो दिस कैन बी डन. अगर मान लो ABC 3 लोग हैं, तो A को B के साथ कंपेयर किया, एक रिजल्ट आ गया. अब वापस से B को A के साथ कंपेयर नहीं करना है, तो A to B is same as B to A. This is the question on combination. और फॉर्मूला क्या है? NC2. How many persons are there? There are 9 persons. 9C2. This is 9 into 8 by 2 factorial. 36 comparisons are to be done. Clear है क्या? Now, let's do a question. Question number 8. In a tournament, 14 teams play league matches. If each team plays against every other team only once, then how many matches are being played? क्या आप ये क्वेश्चन खुद से नहीं ट्राई कर सकते हो? एक बार ही खुद से ट्राई करो और मुझे इसका आंसर कमेंट करो. 14C2. Break this down and tell me the result. And you know, these are questions of combination. Why? Because अगर एक टीम दूसरी टीम के साथ मैच खेल रही है
तो दी नंबर ऑफ मैचेस वुड बी कंसिडर्ड एज 1 एंड नॉट 2. मूविंग ऑन. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को अभी पॉज करो और ये 5 के 5 क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो. इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द कीवर्ड्स एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एग्जैक्टली 2, एट मोस्ट 2, कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आए. ये 5 के 5 क्वेश्चन करने पे एनी नंबर ऑफ फ्रेंड्स टू अ पार्टी एंड अभिषेक टिपिकली हैज 5 फ्रेंड्स. तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? 1-2 मिनट का टाइम लगेगा. आप जल्दी से इसे रिस्पॉन्ड करो कमेंट पे और मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर है. देन वी लुक एट द कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस, द शॉर्टकट रिलेटेड टू सच क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल सी इन डिटेल. प्लीज गिव दिस अ ट्राई. चलो, अज्यूमिंग कि आपने अभी आंसर्स को कमेंट कर दिया, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट. एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स टू अ पार्टी. आपके पास टोटल 5 दोस्त हैं. आप एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स को बुलाते हो पार्टी पे. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस कैन बी डन? तो आप बोलोगे आई आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स I can choose to invite any 2, so 5C2, invitation selection. So 5 into 4 by 2 factorial, this is 10 ways it can be done. Easy? Okay. At least one friend to a party. 5C1, minimum 1 है. मैक्सिमम क्या हो सकता है? सारे के सारे दोस्त. तो आप 5C2 भी बोलोगे, 5C3 भी होगा, 5C4 भी होगा एंड 5C5 भी होगा. ऑल राइट. एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स टू अ पार्टी. अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली में कि 5C1 आई नो इट इज 5 एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर. बट एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स का मतलब क्या है? कैन आई कंसिडर दिस केस? ये तो 5C1 आ रहा है, दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 फ्रेंड. बट एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स का मतलब है आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड ऑल ऑफ दीज केसेस शुड बी इंक्लूडेड हियर. सो 5C2, 5C3, 5C4 and 5C5. These 4 cases should be included here. Now, एक important concept है यहाँ पे, वो ये है कि any number of friend का क्या मतलब है? Any number of friend का ये मतलब है जब given a choice to invite or not to invite, I can choose not to invite someone. So out of 5 friends that I have, one of the cases I can choose not to invite someone. So 5C0, nobody is being invited. And then 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5. क्लियर है? अब देखो, शॉर्टकट है, सिंपल सा. क्या है वो शॉर्टकट फॉर्मूला? कभी भी इफ आई एम स्टार्टिंग विथ NC0, देन आई राइट NC1, देन आई राइट NC2 गोइंग अप टू NCN. This is completely solvable with the help of the formula 2 to the power n. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 इज बेसिकली 2 to the power 3. What is 2 to the power 3? 8. देखते हैं. 3C0, the number of ways of not selecting someone is 1. 3C1, 3. 3C2, 3 into 2 by 2 factorial. 3C3, 1 way. चलो ज़रा ऐड करो इन्हें. 1 plus 3 4 plus 3 plus 1, एक्चुअली 8 नंबर ऑफ केसेस. तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड कंटिन्यूज टिल द नंबर, तो क्या मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ एज 2 to the power 5 which is 32. That is our answer. At least one friend to a party का मतलब है कि I have to start from 5C1 and I continue till 5C5. तो इसको मैं लिख सकता हूँ this is 2 to the power 5, बट इसमें मैं क्या ऐड नहीं कर रहा हूँ. दिस केस 5C0, तो माइनस 5C0. तो दिस शुड बी अल्टीमेटली 32 minus 1 which is 31 ways. और आप अगर इसे इंडिविजुअली सॉल्व करना स्टार्ट करो, जैसे 5C1 is 5, 5C2 is 10, 5C3 is also 10, 5C4 is actually 5 and 5C5 is 1. ऐड करो इनको ज़रा, तो टोटल आ जाएंगे 31. क्लियर है? नाउ एट मोस्ट 2 फ्रेंड्स एट अ पार्टी का क्या मतलब है? मैक्सिमम, एट मोस्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 2, सो 5C2. बट मिनिमम क्या हो सकता है? नाउ यू नो इट इज 5C0.
बीच में क्या आ सकता है 5c1, तो दिस इज 5c0 1 वे, 5c1 5, 5c2 is 5 into 4 by 2 factorial which is 10. So ultimately 16 ways this can be done. अब आप मुझे बताओ क्या ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं and the respective formula regarding such question, which is when you start from the initial case of nc0 and you proceed up to ncn, इन सारे केसेस को जब ऐड करते हो तो दिस इज ऑलवेज 2 to the power n, ऑलवेज सिंपल फॉर्मूला, इसे ध्यान में रखते हो तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से बन जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होगा. ओके, this is also a PYQ question. Please give this a try. This is going to be a last question for also. You can join our Telegram channel if you have not joined so far. A two-member committee comprising of one male and one female is to be formed. A male and a female. And there are a total of 5 males and 3 females. अभी अगर मैं क्वेश्चन को यहीं पे रोक दूं और मैं आपसे पूछूं कि कितने डिफरेंट वेज में होगा तो आप क्या बोलोगे? यू नीड टू फिल वन स्पॉट विथ मेल, सो आउट ऑफ 5 मेल 1 मेल शुड बी ऑलवेज सेलेक्टेड, सो 5c1. फीमेल को फिल करने के लिए देयर आर 3 फीमेल, सो 3c1. सो दिस इज हाउ इट शुड बी डन. नाउ दिस इज 5 into 3 which is 15 ways the team can be formed of 2 members comprising of 1 male and 1 female. But here comes the important part. क्या है important part? Amongst the females, Mrs. A refused to be a member of the committee in which Mr. B is taken as a member. मतलब जो टीम मेंबर्स में फॉर्म कर रहा हूँ उसमें अगर मेल यहाँ पे है, यहाँ पे फीमेल है, और फीमेल में अगर मिसेज ए है, अगर मेल में मिस्टर बी है तो यहाँ पे मिसेज ए नहीं आ सकता. तो बी एंड ए, मिस्टर बी एंड मिसेज ए कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ टीम. बट इफ यू राइट 15 वेज, ये वाला केस भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा. सोच के देखो जरा, 15 वेज का क्या मतलब है? आउट ऑफ दीज 5 मेल्स 1 मेल इज सेलेक्टेड एवरी टाइम एंड 1 फीमेल इज सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज 3 फीमेल्स. तो ये 15 वेज हुए. उसका एक केस ये है. इस एक केस को बोला जा रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर मैं 15 में से ये पर्टिकुलर केस माइनस कर दूं तो आई वुड बी लेफ्ट विथ 14 वेज. सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस कैन बी कंस्टिट्यूटेड द कमिटी? It can be done in 14 ways.